کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. خدا کی تلاش. آج ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہے، یعنی ملحد ہے. ان کی ملحدانہ سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ شاید خدائے واحد کے بارے میں ان کا علم ناقص و کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود ہی سے انکاری ہوگے. آپ کے لیے ہم نے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو سن کر آپ سچے، پاک، واحد آسمانی خدا کی خصوصیات کو جان کر ملحدانہ سوچ سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام خدا کی تلاش. شکریہ، تھینکس. یہ دو لفظ خواہ کسی بھی زبان میں ادا کیوں نہ کیے جائیں سننے والے کو اچھا لگتا ہے، مگر لفظی شکر گزاری اور دلی شکر گزاری میں بہت فرق ہے. پہلی رسمی طور پر اور دوسری عقیدت اور خلوص دل کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں خواہ ان کے لیے کچھ بھی کریں وہ شکریہ ادا کرنا پسند ہی نہیں کرتے. ظاہر ہے یہ ایک ناگوار، غیر مہذب، غیر اخلاقی حرکت ہے. شاید اسی لیے ہمارے ہاں ایسے شخص کو احسان فراموش یا ناشکرا کہا جاتا ہے. انسانوں کو تو چھوڑیے، کچھ لوگ اپنے تخلیق کار کا بھی شکر ادا نہیں کرتے، حالانکہ خدا کی ہماری زندگی پر اتنی شفقتیں، مہربانیاں، رحمتیں، بخششیں اور احسانات ہیں کہ گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے. کیا ہمارا فرض نہیں کہ اپنے پروردگار کے سامنے جھکیں اور شکر گزاری پیش کریں؟ خدا کا وفادار چنا ہوا بندہ داؤد نبی خداوند خدا کی حمد و تمجید کرتے ہوئے کہتا ہے، میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا. میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا. میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا. اے حق تعالی، میں تیری ستائش کروں گا. اور پھر خوشی سے خداوند خدا کی عبادت و پرستش کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو. خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو. جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے. اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں. ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو. اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. آپ نے دیکھا کہ خدا کا صادق و سچا خادم کس عقیدت اور خلوص دل سے خداوند خدا کے سامنے شکر گزاری پیش کرتا ہے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ خوشحالی اور شادمانی میں ہی نہیں بلکہ دکھوں اور تکلیفوں میں بھی خدا کی ابدی برکتوں اور نعمتوں کا شکر بجا لائیں، کیونکہ ہر اچھی نعمت ہمارے خداوند کی طرف سے ہے. وہ ہماری ساری بدکاریوں کو مٹاتا، ہمیں تمام بیماریوں سے شفا دیتا اور ہمارے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے. تو پھر ہمارا فرض ہے کہ قدوس خداوند کو مبارک کہیں اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کریں، بلکہ خوشی کا نعرہ مارتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہوں. اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے. وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے. وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے. وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. تو عقاب کی مانند از سر نو جوان ہوتا ہے.
दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ना तो दुख सुख की घड़ी में और ना ही खाने की मेज पर खुदा का शुक्र अदा करते और बरकत चाहते हैं। उनके सामने मेज पर तरह तरह के खाने चुने हुए हों या हाथ में रूखी सूखी रोटी हो, वो नहीं जानते कि ये खुदा की तरफ से बरकत और नेमत है, क्योंकि न जाने कितने ही लोग जिनको ये नेमत मुयस्सर नहीं और वो बच्चों के साथ भूखे प्यासे सो जाते हैं। अय्यूब नबी खुदा का नेक बंदा बहुत ही मालदार आदमी था। जब शैतान ने उससे सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि उसके बेटे बेटियां भी मर गए, तो तब अय्यूब ने उठकर अपना पैराहन चाक किया और सर मुंडाया और जमीन पर गिरकर सिजदा किया और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया। खुदावंद का नाम मुबारक हो। हम तो जरा सी तकलीफ और परेशानी देखकर खुदा से नाराज हो जाते और दुआ शुक्र ही भूल जाते हैं, मगर अय्यूब नबी एक सादिक और रासबाज आदमी था जो हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करता था। शैतान ने उसके बदन को सिर से पांव तक फोड़ों से भर दिया तो उसकी बीवी ने उस पर तंज के तीर बरसाते हुए कहा, क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। अय्यूब नबी ने जब अपनी बीवी की ये बात सुनी तो जवाब दिया, तू नादान औरतों की सी बातें करती है। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख न पाएं? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता न की। अय्यूब नबी पर मुसीबतों और तकलीफों के पहाड़ टूट पड़े, मगर वो खुदा की हम्द व तमजीद और सब्र और शुक्र करने से बाज न आया और खुदा ने भी उसे पहले से कहीं ज्यादा बरकत बख्शी। मुझे सामीन, यूं तो खुदा ने बनी नो इंसान को अजल से हर तरह की नेमतों और बरकतों से नवाजा, लेकिन खुदा का हमारी जिंदगियों पर एक एहसान ऐसा है जिसका हमें हर लम्हे शुक्र अदा करना चाहिए, और वो है उसका इकलौता बेटा यसु मसीह। खुदा कादिर मुतलक अपना आसमानी जलाल छोड़कर अपने बेटे की सूरत जमीन पर आया ताकि हम गुनाहगारों को मौत की सजा से छुड़ाकर हमेशा की जिंदगी में लाए। हम में से कितने हैं जो खुदा की इस नेमत अजीम के लिए शुक्र अदा करते हैं? कितने हैं जिनको ये एहसास है कि अगर खुदा मसीह यस्सु की सूरत दुनिया में ना आता तो गुनाहों की आग में जलकर राख हो चुके होते। वो दुनिया में आया, हमारी तरह इंसान बनकर दुख सहता रहा, मगर फिर भी हर बात में अपने आसमानी बाप का शुक्र अदा करता रहा, हालांकि वो खुद जमीन और आसमान का खालिक व मालिक था और है। उसी के वसीले से हर चीज पैदा की गई, खास जमीन की हो या आसमान की। मसीह यस्सु ने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान दुआ और हम्द व शुक्र को हमेशा तरजीह और अव्वलियत दी। खा 5 रोटियों और 2 मछलियों पर आसमानी खुदा का शुक्र करना और 5000 के मजमे को खिलाकर सैर करना हो, या 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करना, ये कितनी अजीब और अनोखी बात है कि वो जो खुद जिंदगी की रोटी था और है, रोज की जिस्मानी रोटियों पर अपने आसमानी बाप का शुक्र अदा कर रहा है। यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। चुनाचे उन्होंने जमा किया और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। बस जो मोजज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। क्या मसीह खुदावंद को किसी का शुक्र अदा करने की जरूरत थी? वो तो खुद खुदा था और है, मगर फिर भी उसने वफादारी और ताबेदारी से अपने आसमानी बाप की हम्द और शुक्र करना जरूरी समझा, जिसके वसीले वो अपना जलाल छोड़कर बेटी की सूरत जमीन पर आया था।
अब जरा गौर फरमाइए कि वो जो खुद जिंदगी का सरचश्मा है, जिसके एक हुक्म से समुद्री तूफान थम जाते और पहाड़ हिल जाते थे, जब मुर्दा लाजर की कब्र पर आया तो किस वफादारी के साथ अपने आसमानी बाप का शुक्र अदा करता है। वो कब्र एक गार था जिस पर पत्थर रखा हुआ था और वहां लोगों की एक बड़ी भीड़ जमा थी। यसू ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मर्था ने उससे कहा, ए खुदाबंद, उसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यसू ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा न था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यसू ने आंखें उठाकर कहा, ए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बाइस जो आस पास खड़े हैं मैंने कहा ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ए लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यसू ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। इसी तरह मसीह खुदावंद जो खुद हिकमत और दानिश का सरचश्मा है, जिसकी बातें सुनकर बड़े बड़े यहूदी शरह के आलिम दंग रह जाते थे, हम जैसे कम अक्ल और नासमझ इंसानों को हिकमत और दानिश दिए जाने पर अपने आसमानी बाप का शुक्र अदा करता है। यसू ने कहा, ए बाप, आसमान और जमीन के खुदाबंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। और जब मसीह खुदावंद को सलीब दिए जाने का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया और खाने की मेज पर अपने आसमानी बाप का दुख की घड़ी में भी शुक्र अदा किया। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का शीरा अब से कभी न पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही न आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। अब सवाल ये है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह हर बात में अपने आसमानी बाप यानी खुदा का शुक्र अदा करते थे, तो क्या हमारा फर्ज नहीं कि सादी को रास्तबाज बनकर दुख सुख और गम खुशी में खुदावंद खुदा का शुक्र बजा लाएं? यकीन कीजिए, जब खुदा सादिकों को वफादारी से हम्द और शुक्र करते देखता है तो अपने सादिकों को शादमान करता है। जी हाँ, खुदा सादिकों को शादमान करता है और खुदा की यही वो खसूसियत है जिसका हम अपने अगले प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। सुनना मत भूलिएगा।